Hello my lovely souls, welcome to my channel. I hope you all doing well. Today we are going to see how will be your day or mood when you will first time meet your future spouse. So it's a general reading, so take only those messages which resonates with you and leave the rest. Like as always, we have two group number 1 and group number 2. Use your intuition and choose any group which you have drawn into, and I will meet you at group number 1. Hello group number 1, today we are going to see how will be your day or mood when you will first time meet your future spouse. So we have the Lovers card, the Hermit card, Eight of Swords, the Rebel card, Courage card and the Master card. So with the Lovers card, I can say that your first time encounter with your future spouse will be divinely guided. In this card, in this Lover card, you can see the Archangel with bow and arrow. Here I feel like the day when you will meet your person, certain events or situations will arise which will demand your presence at somewhere, or maybe you will suddenly decide to meet some person or visit some place, and at the same time the universe will place your person at the exact location with you so that you can meet with each other. So basically the whole scenario will be pre-planned by the Almighty. Well, group 1, when I was shuffling your cards, suddenly an image came into my mind. In that image I saw a lady. She was sitting at the back seat of a car near right window and smiling outside. She was crossing a flyover and was only passenger. So it may be resonate with specific viewers. Like there's a possibility that when you will meet your future spouse for the first time, you may cross some flyover or like that. For some of my other viewers, that day you will feel lonely and evaluate your life situation, like from your childhood, how far you have come alone till now. So it's like an experienced person revisiting his or her life journey. And for some others, there's a possibility that you may feel helpless or powerless on that day with Eight of Swords. But don't worry, it will be a temporary feeling or temporary thing, and help will be available if you ask. For this group, I can sense a rebellious energy. That day when you will meet your future spouse for the first time, you will be ready to end a situation where you feel trapped and will emerge as a free or independent personality. Courage is what I'm feeling for you. So with Eight of Swords, Rebel card and Courage card, I can sense that the day when you will meet your future spouse for the first time will be a very significant day of your life. Not only because you will meet your person, but also you will overcome from a trapped situation or event which makes you feel helpless, and you will return to your own power. For some of my viewers, you are very intuitive, and with the Master card, I can sense that from the bottom of your heart, you will feel that something big or special is going to happen with you on that day. First, for you, I am feeling like you have unknowingly you have already connected with your person in a very deep level. So this union in physical world will be very magical for you. So that was for today. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I will meet you in our next video. Till then, bye bye. So when you will meet your future spouse for the first time, I am sensing a cool or alertness energy from you. Your aura on that day will be very authoritative, and you will exude an intelligence vibe. You will be very excited and enthusiastic. For some of my viewers, I am picking up the Scorpion energy. With water, I'm feeling like Scorpion energy. Maybe it may be your sign or your future spouse sign. With water, I'm feeling like for the first time, you will meet your future spouse in a pool. If you see this card, King of Wands, in the back side of the sitting king, you can see the water, and it is a slowing down card. Also, you will see water. So here I'm picking up that for the first time you will meet your future spouse near a pool. Through my shuffling, I saw an image of food preparing, and food preparing in a restaurant or something like that. So there's a possibility that for some of my specific viewers, for the first time when you will meet your future spouse, you will meet them in a hotel. So there's a two possibility. For some of my viewers, you will meet your future spouse in some restaurant, or other half, like you will meet your person in some hotel or like that. So the thing is that due to your work or vacation, you will stay at a hotel, and there will be the swimming pool with minimum distance from kitchen area, or like where you will. So it will be like there will be the swimming pool with minimum distance from pool bar restaurant, where I can see the possible place of your first time meeting with your person. With slowing down card, I can see that the first time when you will meet your person, you will be very chill, sitting or enjoying your day.
if you focus this card, you will see a half tortoise laying, or I can say that enjoying, sitting near the water. So it's like I'm picking the energy like you will meet your person when for the first time you will meet your person near water. In other words, your meeting place could be near water. For some of my viewers, you will be feel bored on that day. For the when you will meet your future spouse, you will feel like bored or less energetic. And for various with exhaustion card, I feel like it's a very specific message for a very specific viewers. It's like that when I'm feeling like you are exhausted. Here, I'm feeling like you have waited a very long time to meet your future spouse, and your heart is at pain. You are starting to feel like you will die alone without your person in your life. It will, for you, it will. It's like a very worst feeling. But don't worry, don't lose hope, because with number 9 in exhaustion card, those painful feeling will end, and a new life cycle will start very soon, where you will meet your soulmate or your future spouse for the first time in your life. So that was for today. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I will meet you in my next video. Till then, bye bye. हेलो माय लवली सोल्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस से जब आप पहली बार मिलोगे तो उस दिन आपका मूड कैसा रहेगा या फिर आपका डे कैसा रहेगा। तो ये एक जनरल रीडिंग है, आप वही मैसेजेस ले जो आपके साथ रिजोनेट करते हो और बाकी को छोड़ दे। हमेशा की तरह हमारे पास 2 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। अपना इंट्यूशन यूज़ कीजिए और कोई भी एक ग्रुप चूज कीजिए, और मैं आपको ग्रुप नंबर 1 में मिलती हूँ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आज हम देखेंगे कि आपके जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से पहली बार मिलोगे तो उस दिन आपका डे कैसा रहेगा या फिर आपका मूड कैसा रहेगा। सो हमारे पास है द लवर्स कार्ड, हर्मिट कार्ड, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, रिवेल कार्ड, करेज कार्ड एंड द लास्ट द मास्टर कार्ड। सो यहाँ पे मुझे ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि लवर्स कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ जब आप पहली बार मिलोगे, ये एनकाउंटर या फिर ये पहली मुलाकात डिवाइनली गाइडेड होगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है। अगर आप इस लवर्स कार्ड को देखो, यहाँ पे एक आर्कएंजल आपको दिखाई देंगे बो एंड एरो के साथ। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि उस दिन जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से पहली बार मिलोगे, वहाँ पे उस दिन कुछ ऐसा सिचुएशंस, सडन इवेंट्स होगा या फिर सिचुएशंस अराइज होंगे जो आपका जिस पे आपका मतलब जो आपका टाइम डिमांड करेगा। आपकी ऐसा होगा सिचुएशन अराइज हो सकता है कि कब सडनली आपको कहीं पे जाना पड़े, या फिर आपको मतलब किसी इंसान से आप डिसाइड करो कि सडनली आप किसी इंसान से मिलो, या फिर आप कोई एक सी प्लेस पे विजिट करो, और एग्जैक्ट वही सेम टाइम पे यूनिवर्स आपके पर्सन को आपके सामने लेके आएगा ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल सको। तो बेसिकली यहाँ पे जो होल सिनेरियो होगा ना उस दिन का, तो ये सिनेरियो पहले ही ऑलमाइटी ने प्री प्लान करके रखा है आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा वाइब यहाँ से मिल रहा है। और यहाँ पे जब मैं आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर रही थी तो मुझे तो एक मतलब इमेज मेरे दिमाग में आया सडनली, और वहाँ पे मैंने मतलब उस इमेज में मुझे एक लेडी दिखाई दी जो अपने गाड़ी के बैक सीट पे बैठी थी, राइट विंडो के पास, और बाहर मतलब खिड़की के बाहर देख के वो स्माइल कर रही थी, और उस वक्त वो एक फ्लाईओवर क्रॉस कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों में से किसी के साथ ये चीज़ रिजोनेट करे, या फिर ऐसा हो सकता है जबकि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से पहली बार मिलो तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप किसी गाड़ी में या अपनी कार में ट्रैवल करे हो, किसी और फ्लाईओवर कुछ ऐसा क्रॉस करो, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दिया। और मेरे यहाँ पे कुछ व्यूवर्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना, जिस दिन आप अपने पहली बार अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगी उस दिन आप एक बहुत लोनली फील करोगी, और अपने लाइफ के इवेंट्स को आप रीवैल्यूएट करोगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लाइक अपने बचपन से लेके आज तक मतलब जितने अलोन टाइम अपने स्पेंड किया है, अपने जब से आपकी मेमोरी आपके साथ है उस वक्त से लेके आज तक का जो आपकी लाइफ सफ़र रहे हैं, जो आपकी लाइफ जर्नी रहे ना, आप वो विजिट करोगी एक्सपीरियंस पर्सन की तरह, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि उस दिन कुछ हेल्पलेस जैसा आप फील करोगे, या फिर पावरलेस, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि आप पावरलेस या हेल्पलेस ऐसा फील करोगे। बट डोंट वरी, एक टेम्पोरी सिचुएशन है, और अगर आप चाहो तो आपके लिए हेल्प अवेलेबल है ताकि आप उस सिचुएशन से बाहर आ सको। अगर आप किसी से हेल्प मांगो तो आपको हेल्प मिलेगा। और इसके लिए मुझे ना एक रिबेलियस एनर्जी दिखाई दे रही है रिबेल कार्ड के साथ। तो यहाँ पे ये है कि जिस दिन आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ आप जब पहली बार मिलोगे ना, उस दिन आप मतलब एक रेडी मोशन पे रहोगी, एक ऐसी सिचुएशन को मतलब या फिर कुछ इवेंट्स और सिचुएशंस मतलब इवेंट और सिचुएशन को डी एंड करने के लिए जहाँ पे आप ऐसे ट्रैप जैसे फील कर रहे थे और हेल्पलेस जैसे फील कर रहे थे, ऐसे एक सिचुएशन को आप एंड करने के लिए रेडी रहोगे, और आप एक नए पर्सन अपने पावर में आप एक नए पर्सन जैसे इमर्ज करोगे। आप एक इमर्ज करोगे ऐसे एक नए पर्सन, आपका पुनर्जन्म हुआ, फिर या फिर ऐसा कहूँ कि आप अपने ओन पावर में आए हो, ऐसा आपको फील होगा।
सो मुझे इस ग्रुप के लिए मुझे करेज जैसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, रिवेल कार्ड के साथ और करेज कार्ड के साथ मैं यहाँ पे ये सेंस कर रही हूँ कि जिस दिन आप अपने फ्यूचर स्पाउस से पहली बार मिलोगे ना, वो दिन आपके लाइफ के लिए एक बहुत सिग्निफिकेंट डे रहने वाला है। नॉट बिकॉज कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ पहली बार मिलोगे, बट लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि अब उस दिन आप एक सिचुएशन से, एक ऐसे सिचुएशन से बाहर आओ कि जो आपको ट्रैप फील कर रहा था, या फिर आप एक ग्लूमी मोमेंट से अपने लाइफ के कुछ मतलब ऐसे सिचुएशन या फिर एक मोमेंट जहाँ पे आपको ट्रैप फील हो रहा है, वहाँ से आप निकालोगे खुद को और यहाँ पे आप अपने पावर में होगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और मास्टर कार्ड के साथ मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे ये महसूस हो रहा है कि इस ग्रुप में ना, ग्रुप नंबर 1 में बहुत मतलब कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं कि जो बहुत इंट्यूटिव है, और जिस दिन अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे ना, उस दिन आपको मतलब पहले से ही ऐसा महसूस होगा कि आपके लाइफ में या फिर उस दिन आज आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो, तो आपको जब अपना डे स्टार्ट करोगे, आपको कुछ ऐसा महसूस होगा कि आपकी लाइफ में आज कुछ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है, या फिर आप किसी से मिलने वाले हो, या फिर कुछ बिग बड़ा चेंज होने वाला है, आप ऐसे फील करोगे। मतलब भले ही आप अननोइंगली आपको पता ना हो, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ग्रुप में कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ बहुत पहले ही मतलब एक स्पिरिचुअल लेवल पे आप बहुत ऑलरेडी कनेक्टेड हो, और जब आप मतलब इस फिजिकल वर्ल्ड में उनके साथ पहली बार मिलोगे ना, वो मोमेंट आपके लिए बहुत मैजिकल होने वाला है। तो ये था आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, आज हम देखेंगे कि जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से पहली बार मिलोगे, उस दिन आपका डे कैसा रहेगा या फिर आपका मूड कैसा रहेगा। तो हमारे पास है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वंस, स्लोइंग डाउन कार्ड, 4 ऑफ कप्स एंड लास्ट कार्ड इज एग्जॉस्शन कार्ड। सो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि जब आप पहली बार अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे ना, उस दिन मैं यहाँ पे आपके लिए एक कूल और अलर्टनेस एनर्जी आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक कूल और अलर्टनेस एनर्जी आपसे एक्सक्लूड हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और उस दिन आप अपने ट्रू एनर्जी के साथ रहोगे, और आपका ऑरा उस दिन मतलब वेरी अथॉरिटेटिव मुझे ऐसा लग रहा है, आप अपने कमांड और अपने पावर में होगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और जो इंसान आपको देखेगा ना, वो मतलब ऐसा महसूस करेगा कि आप एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो, और मतलब कोई आप किसी पावर पोजीशन में हो जहाँ पे आपके ऊपर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो मुझे मतलब यहाँ पे मुझे आपसे मतलब एक एम्पेरर की वाइब आ रही है, यहाँ पे इस ग्रुप से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और यहाँ पे मेरे यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पे मतलब अपना उस दिन बहुत एक्साइटेड रहोगे और एंथुसियास्टिक भी रहने वाले हो। और यहाँ पे मुझे इस ग्रुप से ना स्कॉर्पियन एनर्जी वाइब्स आ रही है। यहाँ पे हो सकता है कि स्कॉर्पियो एनर्जी आपकी मतलब आपकी हो, स्कॉर्पियो एनर्जी या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के स्कॉर्पियो एनर्जी या फिर स्कॉर्पियो साइन हो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और अगर आपको किंग ऑफ वंस कार्ड देखे तो यहाँ पे किंग के पीछे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे आपको वाटर में दिखाई देगा इस कार्ड में। तो यहाँ पे वाटर साइन के साथ मुझे या वाटर के साथ मुझे यहाँ पे ये महसूस हो रहा है कि अब अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ जब आप पहली बार मिलोगे ना, उस वक्त आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कहीं नियर पुल के या जहाँ पे ऐसे जगह पे मिलोगे जहाँ पे आसपास आपके कोई पुल होगा या फिर पानी होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और जब आपके लिए मैं कार्ड शफल कर रही थी तो मुझे एक इमेज आया, एक फूड प्रिपेयरिंग का इमेज आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इस ग्रुप में कुछ व्यूअर्स अब अपने फ्यूचर स्पाउस को इस रेस्टोरेंट में मिलने वाले हो, रेस्टोरेंट होगा। और कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ऐसा तो यहाँ पे ये शायद पॉसिबिलिटी है कि आपकी किसी वर्क की वजह से या फिर किसी वेकेशन मनाने के लिए आप कहीं होटल में, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी होटल में जाओगे और जहाँ पे मतलब कुछ दिन वहाँ पे आप स्टे करोगे। और उस टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे एक जनरली नहीं, यहाँ पे होटल में पुल जो होता है, तो पुल और उस पुल के मतलब आप जिस होटल में आप स्टे करोगे उस होटल में आपका स्विमिंग पूल होगा, और उस स्विमिंग पूल के बहुत मतलब नज़दीक ही आपका किचन एरिया हो सकता है, या फिर मतलब पुलवर ऐसे रेस्टोरेंट भी हो सकता है जहाँ पे खाना सर्व किया जा रहा हो या फिर बेवरेज सर्व किया जा रहा है। और उस मतलब पुल और बेवरेज फूड सर्विंग एरिया के आसपास ही मुझे आपकी मतलब एनर्जी महसूस हो रहा है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से पहली बार मिलोगी। और स्लोइंग डाउन कार्ड के साथ मैं ये बोल सकती हूँ कि जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे ना, तो उस दिन आप मतलब आपकी एनर्जी एक रिलैक्स्ड और आप बहुत चिल रहने वाले हो। और आप मतलब अपना कहीं पे बैठ के या फिर जहाँ पे वाटर होगा ऐसे जगह पे, पुल के पास या फिर जहाँ पे वाटर होगा, रिवर से ऐसे जगह पे आप बैठ के अपना डे आप रेस्ट करोगे या फिर अपना डे इंजॉय करने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है।
अगर आप स्लोइंग डाउन कार्ड देखो, यहाँ पे आपको ये टॉर्टोइस आपको दिखेगा, हाफ टॉर्टोइस, और यहाँ पे वाटर है, पानी है। तो मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है कि आपको किंग ऑफ वंस के साथ और ये स्लोइंग डाउन कार्ड के साथ आप जब अपने फ्यूचर स्पाउस से पहली बार मिलोगे ना, तो वहाँ पे आप एक ऐसे जगह पर मिलोगे जहाँ पे पानी होगा। एंड यहाँ पे कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस दिन आप पहली बार अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे ना, आप उस दिन बहुत बोर फील करने वाले हो। और बाकी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एग्जॉशन कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत मतलब थक चुके हो। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी बहुत थकाने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने अपने फ्यूचर्स पास के लिए आप बहुत सालों से वेट कर रहे हो उनसे मिलने के लिए, और आपके दिल में आपके हार्ट पेन ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और यहाँ पे आपके माइंड में आप ऐसा सोचने लगे हो कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिले बिना ही आप इस दुनिया से जाओगे, ऐसा मुझे आपसे वाइब आ रहा है कि आप ऐसा सोच रहे हो। तो लेकिन यहाँ पे मैसेज ये है कि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव रहिए, क्योंकि यहाँ पे एग्जॉस्शन कार्ड के साथ आपको नंबर 9 दिखाई देगा। तो यहाँ पे जब 9 कार्ड आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी जो दुख भरी जो फीलिंग है, या फिर आप जो जिस दर्द से गुजर रहे हो, अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलना चाहते हो लेकिन मिल नहीं पा रहे हो, जो आपका दुख है या फिर आपका दर्द है, वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। और नंबर 9 के साथ आपकी लाइफ में एक नई स्टार्टिंग होने वाली है, जिस स्टार्टिंग में आप और उस न्यू बिगिनिंग के साथ, उस नई स्टार्टिंग के साथ अब आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आने वाले हैं और आप पहली बार उनसे मिलने वाले हो। तो ये था आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।